असेंबली इंतखाबात में 56,000 से ज्यादा वोटर्स घर बैठे वोट डालेंगे। राजस्थान के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रवीण गुप्ता का बयान। मोदी छत्तीसगढ़ और राजस्थान हुकूमतों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कांग्रेस कायदीन केसी वेणुगोपाल और अभिषेक मनु सिंह भी का इल्जाम। जम्मू कश्मीर के जिले पुंछ में एसआईए के धावे मिलिटेंसी केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। नेपाल में तबाहकुन जलजले से मची तबाही। जलजले से 136 अफराद हलाक, 141 जख्मी। वज़ीर आज़म नेपाल ने हिफाजती इदारों को फौरी राहत रसानी की दी हिदायत। और अब खबरें तफसील से। बीआरएस के कारगुजार सदर और वजीर आईटी के तारक रामाराव ने कहा कि रंगारेड्डी जिले में कायम की जा रही फॉक्सकॉन कंपनी को बेंगलुरु मुंतकिल करने की कांग्रेस पार्टी की साजिशों पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिवा कुमार की जानिब से फॉक्सकॉन कंपनी को खत लिखने पर बरहमी का इजहार किया। रियासती वजीर केटीआर ने हैदराबाद के जला विहार में मुनाकिदा तेलंगाना लॉयर्स एसोसिएशन के इजलास में शिरकत की और खिताब किया। केटीआर ने कहा कि फॉक्सकॉन कंपनी एप्पल फोन से मुताल्लिक बहुत सी डिवाइसेस तैयार करती है, जिसने चीन में 15 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। हमने 4 साल तक जद्दोजहद की और तेलंगाना में सरमायाकारी करने की तरकीब दी, जिसके नतीजे में कंपनी ने यूनिट कायम करने पर रजामंदी हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मुकामात पर ताइवान और अमरीका और चीन से मुलाकात के बाद फॉक्सकॉन के चेयरमैन 2022 में हैदराबाद आए और वजीर आला केसीआर से मुलाकात किए और ऐलान किया कि वो एक फैक्ट्री कायम करेंगे। 1 लाख लोगों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के बामुकाबले कोंगारा क्लान में 200 एकड़ अराजी पर तामीर शुरू हो गई है। दोनों मंजिलें मुकम्मल हो चुकी हैं। केटीआर ने कहा कि फॉक्सकॉन कंपनी अप्रैल और मई के महीने में शुरू होने वाली है, लेकिन कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवा कुमार ने 25 अक्टूबर को फॉक्सकॉन कंपनी को एक खत लिखा। एप्पल एयरपोर्ट्स इंडस्ट्रीज को हैदराबाद से बेंगलुरु मुंतकिल करें। केटीआर ने तहरीक तेलंगाना के दौरान दर्ज मुकदमात के खात्मे के लिए तेलंगाना की वकला की जानिब से किए गए इक़दाम की भरपूर सताइश की। बार कौंसिल मेंबर्स की अदे विधंगा वेदिक मुंदुन्न राष्ट्रंलोनि नలుమూల నుంచి విచేసిన న్యాయవాదులైన సోదరులకి అదే విధంగా సోదరీమణులందరికీ పేరు పేరున పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ నమస్కారం। న్యాయవాదుల అంశాలు, న్యాయవాదుల సమస్యలు ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించే ముందు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరేది, మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రార్థించేది, తెలంగాణ ఉద్యమంలో విద్యార్థులకి దీటుగా విద్యార్థులు ఎంతైతే క్రియాశీలంగా, విద్యార్థులు ఎంతైతే అగ్రెసివ్గా పనిచేసినారో అంతే అగ్రెసివ్గా ఆనాడు ఉస్మానియా క్యాంపస్ గేట్లు మూసేస్తే ఆ గేట్లను బద్దలు కొట్టింది ఆనాడు న్యాయవాద మిత్రులు, ఆనాటి న్యాయవాద సోదరులు। ఢిల్లీలో పార్లమెంటు ముట్టడికి ఆనాడు కేసీఆర్ గారు పిలుపునిస్తే బ్యారికేడ్లు ఎక్కి ఆనాడు విద్యార్థుల కంటే కూడా సరిసమానంగా దాదాపుగా పోరాటం చేసింది మా తెలంగాణ న్యాయవాద మిత్రులు। కొన్ని అనుభవాలు మర్చిపోదామన్నా మర్చిపోలేని అనుభవాలు కొన్ని। మమ్మల్ని ఒకసారి ఇక్కడ మౌలాలీలోనో ఎక్కడో అరెస్ట్ చేసినారు, గుర్తులేదు, మౌలాలీలో అనుకుంటా, అక్కడ అరెస్ట్ చేసి సాయంత్రం రైలు రోకో తర్వాత సాయంత్రం అరెస్ట్ చేసి దాదాపు రాత్రి 1 గంటకో 2 గంటలకో మరి మెజిస్ట్రేట్ ముందు ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కాబట్టి స్ట్రైట్గా తార్నాక హబ్సిగూడ ప్రాంతంలో తార్నాకలో ఆ రైల్వే జడ్జెస్ ఎక్కడైతే ఉంటారో ఆ ప్రాంగణంలోకి తీసుకొని పోయినారు। పోయిన తర్వాత అంటే కొన్ని మర్చిపోలేము। నాకు ఇంకా అప్పటికెప్పుడు కోర్టులో హాజరై కోర్టులో నిలబడ్డ అనుభవం లేదు, జడ్జి గారి ముంగట నిలబడ్డ అనుభవం ఇంకా అప్పటికి లేదు। ఆ రోజు నాకు బాగా గుర్తుంది, అర్ధరాత్రి 1:30కి ఆ జడ్జి గారు కొంత మరి భిన్నంగా ఏమైనా తీర్పు ఇస్తాడేమో అనుమానం మన వాళ్ళకుండే, ఈయన ఏమైనా లోపలేస్తాడేమో అనుమానం ఉంటే ఆ రోజు మీ వాళ్ళు చేసిన గొడవ, ఆ రోజు ఆ జడ్జి గారి మీద జరిగిన మాటల దాడి, అందులో ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారో మర్చిపోయిన ఆ రోజు, కానీ ఉన్నారు ఆ రోజు నిజంగా నేనే అనుమానపడ్డా, మరి జడ్జి గారి మీద ఇంత లేస్తుండ్రు వీళ్ళు,
ఆయన కోపం వచ్చి నా మీద కోపం తీస్తాడేమో నేను అనుకుంటున్నా మనసులో. కానీ ఫైనల్గా ఉద్యమ దాడికి ఉద్యమ వేడికి ఆనాడు జడిసి ఆ న్యాయమూర్తి కూడా అన్యాయం చేయకుండా న్యాయమే చేసి మాకు బెయిల్ ఇచ్చి ఇంటికి పంపించండి. అట్లా వందల వేల కేసుల్లో ఉద్యమ సమయంలో మాకు అండగా నిలబడి మనోస్థైర్యాన్నిచ్చి ధైర్యాన్నిచ్చి న్యాయస్థానాలలో ఒక్క రూపాయి ఆశించకుండా ఒక్క పైసా ప్రతిఫలం ఆశించకుండా మాకు అండగా నిలబడ్డ తెలంగాణ న్యాయవాద మిత్రులందరికీ శిరస్సు వంచి మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఒక 10 నిమిషాల పాటు మీరు న్యాయవాదులు, నేను ఒక రాజకీయ నాయకుడిని, అందులో ఈ ప్రభుత్వంలో ఒక మంత్రిగా ఉన్నవాడిని అనే విషయం ఒక 10 నిమిషాలు మర్చిపోదాం. ఒక సగటు తెలంగాణ బిడ్డగా, తెలంగాణ కావాలని బలంగా కోరుకున్న ఒక సగటు పౌరుడిగా ఒక 10 నిమిషాలు ఏం జరిగింది తెలంగాణలో ఈ 10 ఏళ్లలో ఆలోచించే ప్రయత్నం చేద్దాం, అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాడు, ఆనాడు ఒకవైపు రాష్ట్రం కావాలనే బలమైన ఆకాంక్ష, రాష్ట్రం ఏర్పడితే అన్ని వర్గాలకు న్యాయం జరుగుతుంది అనే ఒక ఆరాటం, ఇవన్నీ ఒకవైపు ఆశల పల్లకిలో ఉన్న తెలంగాణ ప్రజానికం ఒకవైపు, మరొక వైపు ఏం జరుగుతుందో, ఆర్థిక పరిస్థితి ఏందో, తెలంగాణలో ఏం జరుగుతుందో అనే ఒక ఆందోళన కొన్ని వర్గాల ప్రజల్లో ఇక్కడ ఉండేది. అపోహలు, అనుమానాలు, ఆందోళనలు, ఎన్నో రకాల అట్లాంటి అసందిగ్ధ పరిస్థితుల్లో మన రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాటి పరిస్థితి, నేటి పరిస్థితి నిన్న మొన్న మీరు సోషల్ మీడియాలో కొంతమంది చూసే ఉంటారు. అప్పుడు ఎట్లుండే తెలంగాణ, ఇప్పుడు ఎట్లయింది తెలంగాణ అంటూ మన తెలంగాణ బిడ్డలు కొంతమంది కొన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళి तेलंगाना हुकूमत मुल्क भर के लिए रोल मॉडल है, क्योंकि पिछले 9.5 सालों में बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना को जो तरक्की दिलाई है, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेदक जिले के हल्के असम्बली नरसापुर में मुनाकिदा अक़लियती पार्टी मीटिंग को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत मुसलसल तीसरी मरतबा हुकूमत बना रही है, क्योंकि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी का मुकाबला करने किसी भी पार्टी में दम नहीं है। बीआरएस हुकूमत तीसरी मरतबा इख्तिदार में आते ही अपने मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अवाम दोस्त और सेकुलर हुकूमत है, जिसमें तमाम मजहब के लोगों का न सिर्फ एहतराम किया जाता है, बल्कि इन्हें तरक्की के यकसा मौके फराहम किए जाते हैं। आगे कहा कि बीआरएस दौरे हुकूमत में तेलंगाना अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को हर शोबे में फायदा पहुंचाया गया है, जिसकी वजह से तेलंगाना के मुसलमान काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 10,132 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले कांग्रेस हुकूमत ने अपने 10 साला दौरे हुकूमत में मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के अक़लियतों के लिए 1,000 करोड़ रुपयों से भी कम ही खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना अक़लियती तबक़ात की बहबूद और तरक्की के लिए कई इक़दामात कर रही है, जिसमें समाजी, माशी, तालीमी और इदाराजाती तरक्की शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जारिया साल यानी 2023-24 के लिए हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती बहबूद के लिए 2,200 करोड़ रुपये का बजट मुख्तस किया है, ताकि अक़लियतों की हकीकी मानों में तरक्की हो। वज़ीर दाखिला ने मुस्लिम अक़लियतों के लिए शादी मुबारक स्कीम, रेसिडेंशियल स्कूलों, चीफ मिनिस्टर ओएसएस स्कॉलरशिप, इमाम व मुअज़्ज़िनीन के एजाजिया के अलावा दीगर स्कीमात पर अमल अवारी का भी तज़किरा किया। वज़ीर मौसूफ ने अवाम को कार के निशान पर वोट देने और बीआरएस उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। इस मौके पर रुकने असम्बली सी मदन रेड्डी, सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, रुकने कानून साज कौंसल वेंकट राम रेड्डी, सीनियर पार्टी कायदीन मोहम्मद अब्दुल बासित, मेराज खान, देविंदर रेड्डी, मोहम्मद मंसूर अहमद, मोहम्मद नईमुद्दीन, हबीब खान और दीगर शरीक थे। आप लोगों को
क्या यही हमारा जानवर है। आज घर पे मुस्लिम भाई को देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ आने वाले हफ्ते में हमारा वो दिन गाँव को पड़ेगा। अगर मेरे भाई बहन दोस्तों तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर शराब की दुकानात रियासत में 3 दिन तक बंद रहेंगी। इस महीने के आखिर में मुसलसल 3 दिन ड्राई डे के तौर पर मनाया जाएगा और रायदही इस माह की 30 तारीख को मुखर्रर है, जिसके पेश नजर इस माह की 28 या 30 तारीख को शराब की दुकानात बंद रहेंगी। ये दुकानात 1 दिसंबर को दोबारा खुलेंगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन CEC की हिदायत के मुताबिक रियासती आबकारी के महकमा ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि मुतल्लिका हुक्काम इन 3 दिनों तक शराब की फरोख्त को रोकने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। तेलंगाना के शहरी और मज़ाफ़ाती इलाकों के साथ साथ शुमाली तेलंगाना के अजला में कोहर और सर्द हवाओं की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। सर्दी की लहर में बतदरीज इजाफे के साथ ही बल्दी वर्कर्स और चहलकदमी करने वाली मनकी कैंप के साथ बाहर निकल रहे हैं। सुबह और रात के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट देखी जा रही है। सुबह 9 बजे भी सूरज नहीं निकल रहा है। सड़कों पर कोहर छाई हुई है, जिसकी वजह से गाड़ी चलाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शाम 5 बजे के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आदिलाबाद जिले में अकल तरीन दर्जे हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मुत्तहदा मेदक जिले में सर्दी की शिद्दत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। शाहराहों और सड़कों पर कोहर छाई हुई है, जिसकी वजह से सामने से आने वाली गाड़ी नजर नहीं आ रही है। भदादरी कोत्तागुड़ेम जिले में गांजा मुंतकिल करने वाली एक कार बेकाबू होकर दूसरी गाड़ियों से जा टकराई, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। ये वाकया जिले के बोरमपाडू मंडल के मोरमपल्ली बंजारा इलाके में हफ्ते की सुबह पेश आया। इस कार में गांजा मुंतकिल करने की इत्तला पर पुलिस ने इसको रोकने की कोशिश की, तहम कार के ड्राइवर ने कार को रोकने के बजाय पलुंचा की सिमत आगे बढ़ा दिया। इसी दौरान मोरमपल्ली बंजारा इलाके में कार को रोकने की आबकारी महकमा के अहदेदारों ने कोशिश की, तहम कार के ड्राइवर ने इससे बचने की कोशिश की, बाइक और ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे के नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए भद्राचलम के सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस हादसे के साथ ही कार ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। बादअज़ां आबकारी के अहदेदारों ने कार से गांजे को जब्त कर लिया और कार को भद्राचलम के महकमा अखबारी के दफ्तर मुंतकिल कर दिया। पुलिस इस कार के मालिक का पता चलाने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश के तिरुमला के पहले घाट में पहाड़ी इलाके में बड़ा अजदे की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। कल शब ये अजदा अचानक नजर आया, जिससे वहां से गुजरने वाले गाड़ी सवारों में खौफ की लहर दौड़ गई। बादअज़ां इसकी वीडियो भी ली गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बादअज़ां ये अजदा वापस जंगलाती इलाके में चला गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते के रोज बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक को टेलीफोन पर बात किया है, जिसमें दोनों लीडरों ने मगरबी एशिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल, दहशतगर्दी, शहरियों की हलाकत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और साथ ही इलाकाई अमन व सलामती, इस्तेहकाम और इंसानी इमदाद जारी रखने की जरूरत पर इत्तेफाक किया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों लीडरों ने तिजारत, सरमायाकारी, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, दिफाई, सलामती, सेहत और दीगर शोबों समेत दो तरफा जामा स्ट्रेटेजिक शिरकतदारी को मजबूत बनाने के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का अदा किया। उन्होंने बाहमी तौर पर फायदेमंद आजाद तिजारती मुआहदे के जल्द निफाज की जानिब से पेशरफ्त का खैर मकदम किया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया के खिते रोनुमा होने वाली पेशरफ्त और इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ात पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी, बिगड़ती हुई सिक्योरिटी की सूरत हाल और शहरियों की जानों के ज़ाया पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने इलाकाई अमन, सलामती, इस्तेहकाम और इंसानी इमदाद जारी रखने की जरूरत पर इत्तेफाक किया। मिस्टर मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म सुनक को इनकी मियाद के 1 साल की तकमील पर दिवाली की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने राब्ते में रहने पर भी इत्तेफाक किया। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले आइंदा
असेंबली इंतखाबात में 56,000 से ज्यादा वोटर घर बैठे वोट डालेंगे। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर परवीन गुप्ता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक रियासत में पहली बार असेंबली इंतखाबात में 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों के लिए घर बैठे वोट देने की पहल शुरू की गई है, जिसके लिए 40% से ज्यादा माजूरी में मुब्तला अफराद अहल होंगे और इस इलेक्शन में अब तक 56,102 अहल वोटर्स ने इस सहूलत के लिए बतौर ऑप्शन दरख्वास्त दी है। प्रवीण गुप्ता ने कहा कि रियासत में 80 साल से ज्यादा उम्र के 42,799 वोटर्स और खुसूसी माजूर अफराद 10,803 वोटर्स ने इस सहूलत के लिए दरख्वास्त दी है। इसके अलावा तकरीबन 2,500 सर्विस वोटर्स भी शामिल हैं। रियासत में असेंबली आम इंतखाबात पहली बार फराहम की जाने वाली इस सहूलत के लिए जिन वोटरों ने हफ्ते तक दरख्वास्त दी थी वो इसका फायदा उठा सकेंगे। तहम सर्विस वोटर्स 4 नवंबर के बाद भी इसके लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके तहत बूथ लेवल अफसरान घर जाकर अहल वोटरों को वोटिंग से मुताल्लिक मालूमात फराहम कर रहे हैं ताकि इनकी सहूलत हो सके। कांग्रेस ने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी की हुकूमतें बहुत मकबूल हैं और इससे घबराकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इन दोनों रियासतों के हुकूमतों को निशाना बनाते हुए इनके उज़राए आला की छवि को खराब करने की साजिश शुरू कर दी है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल और सीनियर लीडर अभिषेक मानु सिंघवी ने हफ्ते को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब भी कोई इलेक्शन करीब आता है मिस्टर मोदी बीजेपी के लिए ईडी या आईटी डिपार्टमेंट को अपना अहम हथियार बनाना शुरू कर देते हैं। वेणुगोपाल ने कहा छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी के छवि को खराब करने के लिए मिस्टर मोदी की वाज़ेह साजिश है। छत्तीसगढ़ के लोग इस साजिश को समझते हैं और छत्तीसगढ़ के लोग ईडी के इस्तेमाल की इस बदनीयती पर मुबनी मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आला भूपेश बघेल के खिलाफ मरकजी वज़ीर स्मृति ईरानी के इल्जामात का भी जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि ये इलेक्शन एक तरफा होने वाला है, इसलिए इन इंतखाबात को जीतने के लिए वज़ीर आला बघेल और कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एजेंसी के लोग कांग्रेस के हर लीडर की दहलीज पर पहुंच रहे हैं। मरकजी हुकूमत को बताना चाहिए कि महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई करने से इसे किसने रोका है। बुनियादी तौर पर सट्टे में इस्तेमाल होने वाली ये ऐप दुबई से चलाई जा रही है। ये वाज़ेह तौर पर आपके डोमेन में है और आप इस ऐप के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। खुसूसी तहकीकाती एजेंसी SIA ने हफ्ते की आले सुबह जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ में मिलिटेंसी से मुताल्लिक एक केस के सिलसिले में एक घर की तलाशी ली। सरकारी जराये ने बताया कि SIA की एक टीम ने हफ्ते की आले सुबह करीब 4 बजे पूंछ के क्योआन गांव में मोहम्मद हाफिज के घर की तलाशी ली। उन्होंने कहा कि यह तलाशी कार्रवाई मिलिटेंसी से मुताल्लिक एक केस के सिलसिले में अंजाम दी गई है। दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूंछ के कई इलाकों को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया। जराये ने कहा कि पुलिस CRPF ने जिन इलाकों को मुहासरे में ले लिया है इनमें बच्चियां वाली, शेंद्रा, ठंडी कासी और महला सैयदा शामिल हैं। दिल्ली में हवा का मियार हफ्ते की सुबह मुसलसल तीसरे दिन शदीद जुमरे में रहा और सुबह 8:30 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 504 रिकॉर्ड किया गया है। कौमी दारुल हुकूमत में PM 2.5 आलमी इदारा सेहत की हद से 80 गुना ज्यादा रहा। दिल्ली में PM 2.5 का 354 है, जबकि दिल्ली NCR के ज्यादातर इलाकों में PM 10 का कंट्रेशन 552 रहा है, जो कि 60 माइक्रोग्राफ फी क्यूबिक मीटर की मुहाफिज हद से ज्यादा है। दरअसल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने शहर में बिगड़ते हुए हवा के मियार का जायजा लेने के लिए कल एक हंगामी मीटिंग तलब की है और सदारत की और सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया। दिल्ली के लिए एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरफ से जारी करदा पेशन गोई के मुताबिक आज सुबह हल्की धुंध के साथ हवा की रफ्तार तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर फी घंटे से रहने का इम्कान है। इसके अलावा नोएडा में हवा का मियार 576 के AQI के साथ शदीद जुमरे में रहा। CPCB के मुताबिक सेक्टर 116 में 62 में AQI बिला तरतीब 426 और 428 रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह गुड़गांव के हवा का मियार 512 के AQI के साथ शदीद जुमरे में रहा।
पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से बारहमला के महलूक पुलिस एहलकार की बच्ची को सोल इंतजामिया में नौकरी फराहम करने की अपील की है। उन्होंने महलूक पुलिस हेड कांस्टेबल को एक ईमानदार शख्स करार दिया और कहा कि वो अपने घर की 8 खवातीन का वाहिद कफील था। मौसूफ साबिक वज़ीर आला हफ्ते के रोज बारहमला के वैलू करालपुरा में वाक़े मकतूल हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार के घर पहुंची, जहां उन्होंने पसमानदगान से ताज़ियत की इजहार किया। गुलाम मोहम्मद डार को 31 अक्टूबर को गोलियां मार दी गई थी, जिसके नतीजे में इनकी मौत वाक़ई हुई थी। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा कि मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश है कि वो SRO 43 के केस में जल्दगी करें और महलूक पुलिस कांस्टेबल की बच्ची को सोल इंतजामिया में नौकरी फराहम करें। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की हर तरफ से मजम्मत की जा रही है। इनका कहना था कि ये बहुत सी ईमानदार शख्स थे और घर के 8 औरतों का वाहिद कफील था। एक सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा, अफसोस की बात है कि साबिक पुलिस सरबराह ने कहा यहाँ कोलेटरल नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नुकसान नहीं है। बदउनवानी का मुकाबला करने और खिते में शफाफियत को फरोग देने की एक ठोस कोशिश में एंटी करप्शन विंग ने त्राल इंतजामिया के साथ मिलकर एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसकी सदारत SSP अवंतीपुरा एजाज अहमद जरगिर ने की है, जबकि ADC त्राल इस मौके पर मेहमान जुल्फ़िकार के बतौर मौजूद रहे। तकरीब में तहसीलदार SDPO त्राल, महकमा एंटी करप्शन के अफसरान और बाकी सरकारी मुलाजमीन भी तकरीब में मौजूद थे। इस मौके पर विजिलेंस वीक के हवाले से मुकालात पेश किए गए। मीडिया से बात करते हुए SSP अवंतीपुरा ने मीडिया को बात करते हुए बताया कि समाज से करप्शन के खात्मे के लिए हर एक को आगे आना चाहिए। 23 अक्टूबर से जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक ये एक हफ्ते का प्रोग्राम चलता है, उसका एक फंक्शन यहाँ पे रखा गया था कि त्राल जो सब डिस्ट्रिक्ट है इसमें जो सिविल सोसाइटी है उसको जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, जिसमें ADC साहब और हमारे पुलिस के सरबराहान और जो ACB के भी ऑफिसर साहिबान आए थे, तो उन्होंने इस पर रोशनी डाली और बाकी जो पब्लिक सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी और स्टूडेंट्स ने भी इस पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। लोगों के लिए मैसेज है कि लोगों को डर नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का, यानी किसी भी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर वो कुछ कहीं पे भी करप्शन की शिकायत देखते हैं या उनको खुद देखते हैं तो उनको या कोई उनको फोर्स करता है करप्शन के लिए या ब्राइब मांगता है तो उनको सामने आना चाहिए और बेझिझक सामने आना चाहिए। इस वक्त बहुत से मीडियम है रिपोर्ट करने के, वो सामने आ सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया वो हैंडल्स हैं या जो ACB के जो DSP साहब बोल रहे थे कि हमारे ये प्रोविजंस हैं ऐसे अप्रूव कर सकते हैं, तो लोगों को सामने आना चाहिए, बेझिझक आना चाहिए। तो ये बात अब जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह आरा स्वेन का कहना है कि बारहमला में एक पुलिस एहलकार के कत्ल में मुलविस कातिलों को इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस परिवार का एक रुकन, एक वालिद, एक भाई और एक कश्मीर के एक शहरी को खो दिया है। मौसूफ पुलिस सरबराह हफ्ते के रोज बारहमला के वैल्यू करालपुरा में वाक़े मकतूल हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पसमंदगान से ताज़ियत का इजहार किया। गुलाम मोहम्मद डार को 31 अक्टूबर को गोलियां मार दी गई थी, जिसके नतीजे में इनकी मौत वाक़ई हुई थी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर विजय कुमार भी इनके हमरा थे। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा, पुलिस ने इस ट्रिम जुर्म के मुर्तकिबीन को इंसाफ के कटघरे में लाने का अज़्म किया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है, लेकिन तफसीलात को शेयर नहीं किया जा सकता है। इनका कहना था कि हमने इस केस में हासिल की हैं जिनमें पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम पूरी उम्मीद हैं कि मुर्तकबीन को इंसाफ के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। मगरबी नेपाल में जुमा की शब पेश आए 6.4 शिद्दत के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद कम से कम 136 लोगों की मौत हो गई है और 141 जख्मी हो गए हैं। काठमांडू पोस्ट ने जारी करदा रिपोर्ट में इत्तला दी है। नेशनल ज़लज़ला निगरानी और तहकीकी मरकज के मुताबिक नेपाल में गुज़िश्ता रात 11:47 पर ज़लज़ले की शदीद झटके महसूस किए गए।
और इसके बाद भी एक के बाद एक दीगर झटके महसूस किए गए, जिसका मरकज जिले जाबजर कोट में था। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। वजीर आजम पुष्प कमल ने हिफाजती इदारों को फौरी राहत रसानी की हिदायत दी है। वजीर आजम के दफ्तर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वजीर आजम पुष्प कमल दहल ने जुमा की रात आने वाले तबाहकुन जलजले में जान व माल के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है और फौरी तौर पर बचाव और राहत के लिए तमाम 3 सिक्योरिटी एजेंसियों को तैनात किया है। इससे कबल 22 अक्टूबर की सुबह 7:7:30 बजे काठमांडू वादी और आसपास के अजला में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी हम हिमालयाई मुल्क में होने वाले आफत से जान व माल के नुकसान पर दुख का इजहार किया है। मोदी ने एक्स पर लिखा, नेपाल में जलजले की वजह से जान व माल के नुकसान पर दुख हूं और हिंदुस्तान नेपाल के लोगों के साथ यकजहती में खड़ा हुआ है और हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। हमारी ताज़ियत को सोगवार खानदान के साथ है। हम जख्मों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश करते हैं। मगरबी नेपाल में जलजले के शदीद झटकों से 250 से ज्यादा जानी नुकसान हुआ है, जिनमें से 136 अफराद जाँ बख्श और 141 जख्मी हुए हैं और सैकड़ों मकानात को तबाह नुकसान पहुंचा। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। फॉक्सकॉन कंपनी बेंगलुरु मुंतकिल करने कांग्रेस की साजिश, डीके शिवा कुमार का कंपनी को मकतूब काबिल मजम्मत। तेलंगाना लॉयर्स एसोसिएशन के इजलास से रियासती वज़ीर केटीआर का खिताब। तेलंगाना में बीआरएस मुसलसल तीसरी मरतबा हुकूमत बना जा रही है। हुकूमत अवाम दोस्त और सेकुलर अवामी बीआरएस को बनाए कामयाब। हल्के असम्बली नरसापुर में अखिलती पार्टी इजलास से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। तेलंगाना में सर्दी की लहर में इजाफा, सुबह और रात के औकात में दर्जे हरारत में गिरावट। रियासत के मुख्तलिफ अजला में कोहर और सर्द हवाओं से शहरियों को परेशानी का सामना। वज़ीर आज़म मोदी ने बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से टेलीफोन पर की बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर किया तबादले ख्याल। असेंबली इंतखाबात में 56,000 से ज्यादा वोटर घर बैठे डालेंगे वोट। राजस्थान के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर प्रवीण गुप्ता का बयान। मोदी छत्तीसगढ़ और राजस्थान हुकूमतों के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। कांग्रेस कायदीन के सी वेणुगोपाल और अभिषेक मानु सिंह भी का इल्जाम। जम्मू कश्मीर के जिले पुंछ में एसआईए के धावे, मिलिटेंसी केस के सिलसिले में की गई कार्रवाई। नेपाल में तबाहकुन जलजले से मची तबाही, जलजले से 136 अफराद हलाक, 141 जख्मी। वज़ीर आज़म नेपाल ने हिफाजती इदारों को फौरी राहत रसानी की दी हिदायत। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।